With the name of Allah, the most merciful and the most gracious. So dear students, today we will discuss further topics of the grammar which are there in the first unit. So in the last lecture, in lecture number 11, we talked about parts of speech and the two categories of parts of speech. Now another topic of your course, of your book, that is noun phrase and noun clause. So as I told you before, that noun, it means, it stands for any naming word. ये इससे मुराद हमारा कोई भी चीज़ है जो नाम रखता है. And before just we discuss noun phrase or noun clause, so you have to understand a phrase. तो आप लोगों को थोड़ा सा phrase भी जो है ये आपको समझ आना चाहिए. You are much familiar and you must have read it in the previous classes, but let's revise it a bit. So dear students, I'm writing some examples like along the roadside. Here for example, in the middle of the river, or I say on the table, etc. Look at these examples. On the roadside, the first thing is that it is a group of words. ये group है ना, 1, 2, 3, 4 words are there. So 2 or more than 2 words we say a group. So a group, it is a group of people. A group of words. So keep in mind that a phrase, it should be a group of words. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किस चीज़ की मिसिंग है? Along the roadside. इसके साथ अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस सेंटेंस के साथ कि he lives along the roadside, वो रोड के किनारे रहता है, he lives. So what is missing? Subject is missing and verb is missing. Verb, which is known as the integral part of a sentence. Sentence का सबसे integral part जो होता है वो verb होता है. Without a verb, you cannot derive, you cannot get full meaning from the group of words. याद रखिए, group of words चाहे 2, 3, 4, 5 up to 10 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें verb की missing है, ये आपको पूरा मतलब नहीं दे सकते. So याद रखिएगा, what is missing? Subject is missing and verb is missing. So verb, it is related to the subject. If there is no verb, so definitely there will be no subject. If there is no verb, so there will be no subject. If there is no subject, so there will be no verb. क्योंकि हमेशा वर्ब तो सब्जेक्ट के साथ लगता है. अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली उसमें वर्ब भी नहीं होगा. अगर उसमें वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा. सो वर्ब एंड सब्जेक्ट, दीज टू आर कंकमिटेंट. ये लाजिम और मलजूम है एक दूसरे के लिए. एंड अ सेकंड एग्जांपल, लुक एट देयर, इन द मिडल ऑफ द रिवर. फॉर एग्जांपल, ही वाज स्विमिंग in the middle of the river. वो दरिया के वस्त में, दरिया के बीच में तैर रहा था. So here again, subject and verb is missing. In the third sentence, on the table, I put my book on the table. मैंने अपना किताब जो है मेज पर रख दिया. Again, subject and verb is missing. So याद रखिए स्टूडेंट्स, in the first 3 examples, it is a group of word but having no verb. और इस verb को हम कह सकते हैं finite verb. F-I-N-I-T-E, finite verb. Let me tell you what is finite verb. Finite verb is that which forms tense. वो वर्ब जो टेंस फॉर्म करते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहते हैं. वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है. वर्ब की पहली भी फॉर्म हो सकती है, वर्ब की इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, गान जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग भी हो सकता है, और समटाइम इट कैन बी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है.
सो याद रखिए कि इस तमाम सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब की मिसिंग है। तो क्या डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो फाइनाइट वर्ब इज नोन एज फ्रेज। आपने पिछले क्लास में इस तरह का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो ग्रुप जो हमें मुकम्मल माना मतलब नहीं देता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मतलब जो है, मीनिंग जो देता है वो वर्ब होता है, लेकिन अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब की मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली आपको वो पूरा मतलब नहीं दे पाएगा। तो ये एक जामिया तारीफ होगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो फाइनाइट वर्ब इज नोन एज फ्रेज। अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट वर्ब की मिसिंग होगी उसको हम कहेंगे फ्रेज। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक विच इज नाउन फ्रेज। अब फ्रेज जैसे आपने पहले सीख लिया, व्हाट इज अ फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब, वो तो फ्रेज हो गया। नाउन, इसके साथ नाउन है। तो याद रखिएगा कि अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, लेकिन उसमें हेड वर्ड जो होगा, हेड वर्ड, दैट शुड बी अ नाउन। इस तरह हम कह सकते हैं हेड वर्ड। हेड वर्ड का मतलब है कि उसको हटाने से सेंटेंस का कोई मीनिंग बाकी नहीं रहता। जस्ट कम हियर एंड लुक एट दिस एग्जाम्पल। लुक एट हियर, डॉग्स फ्राइटन मी, कुत्ते मुझे डराते हैं। सो हियर डॉग्स, इट इज जस्ट अ नाउन, फ्राइटन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो नाउन फ्रेज। क्योंकि फ्रेज की हमने तारीफ की कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो डॉग्स इट इज अ सिंगल वर्ड, सो इट इज प्योर व्हाट, नाउन, ये एक नाउन है। अब लुक एट दिस एग्जाम्पल, बिग डॉग्स फ्राइटन मी, बड़े कुत्ते मुझे डराते हैं। सो हियर आई पुट द वर्ड बिग विच इज एडजेक्टिव विद द नाउन डॉग्स, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और इसमें हेड वर्ड जो है बेटा, हेड वर्ड मैं कहता हूँ इसमें हेड वर्ड ये डॉग्स है, डॉग्स। इसको हटाने से बिग फ्राइटन मी, व्हाट बिग फ्राइटन मी, क्या चीज बिग आपको डराती है? सो द हेड वर्ड इज डॉग्स। इफ आई रिमूव दिस, डॉग्स फ्राइटन मी, इट गिव्स मी अ सेंस, ये भी मुझे एक मतलब देते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि डॉग्स फ्राइटन मी, इट गिव्स मी अ सेंस, बट इफ आई से बिग डॉग्स फ्राइटन मी, सो इट गिव्स मी अ कंप्लीट सेंस, इट गिव्स मी मोर नॉलेज अबाउट डॉग्स। ये डॉग्स के बारे में मुझे और नॉलेज देती है कि किस तरह कुत्तों से मैं डरता हूँ जो बड़े होते हैं। सो याद रखिएगा बेटा कि इसमें डॉग्स जो है इट इज अ नाउन, और इसके साथ एक वर्ड है बिग है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। और ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। अब एक दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूँ। तो इसमें बिग डॉग जो है, इट फंक्शन इन सेंटेंस इज दैट ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें ये बतौर सब्जेक्ट अपना काम करता है। कौन? नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज किससे बना है? एडजेक्टिव से और नाउन से बना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई मेट जॉन, मैं मिला जॉन से। जॉन इज अ नाउन, आई सब्जेक्ट, प्रोनाउन, मेट वर्ब। अगर मैं ये कहूँगा कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, लुक एट हियर, माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, सो जॉन, माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड जॉन। इसमें से देखिए जॉन को आप निकालें, माई ओल्ड फ्रेंड व्हाट, इनकम्प्लीट। तो याद रखिएगा कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बेटा। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड, माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग नो फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, और इसमें हेड वर्ड जो है वो जॉन है, जॉन। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड फ्रेंड, इनकम्प्लीट सेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, सो द हेड वर्ड इज दैट ऑफ द जॉन। इसमें इसने क्या फंक्शन दिया? एज ऑब्जेक्ट का। तो याद रखिएगा कि नाउन फ्रेज जो होता है वो किसी सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट अपना काम करेगा या बतौर ऑब्जेक्ट अपना काम करेगा। ये बतौर माई ओल्ड फ्रेंड जॉन, इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में हेड वर्ड क्या है? वो नाउन है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बेटा नाउन फ्रेज। इसमें देखिए बिग डॉग्स में हेड वर्ड क्या है? इसमें हेड वर्ड क्या है? डॉग्स है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
तो ये भी नाउन फ्रेज है, लेकिन सब्जेक्ट में, सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट काम करता है। Look at here in the third sentence, she rode on a skateboard. Look at here, on a skateboard. हम बाद में बात करेंगे, लेकिन prepositional phrase, let me tell you a brief thing about, हम तो noun phrase के बारे में बात कर, लेकिन prepositional phrase क्या होता है बेटा? Prepositional phrase, it usually starts with a preposition and ends with a noun. Prepositional phrase वो है जो preposition से शुरू होता है और किस चीज़ पर ख़त्म होता है? नाउन पर ख़त्म होता है। तो देखिए, ऑन, इट इज़ प्रीपोजिशन, स्केटबोर्ड, इट इज़ अ नाउन, इट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये नाउन फ्रेज भी है लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। तो तीसरे में, लेकिन व्हाट इज़ दिस? अ स्केटबोर्ड। इसमें देखिए, इस पर आप इसका फोकस करें, अ स्केटबोर्ड, आ स्केटबोर्ड, इसमें आ भी है, आ इज अ डिटर्मिनर, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। लेकिन ये किस चीज़ का फंक्शन करते हैं? एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने आपको बताया कि ये ऑन अ स्केटबोर्ड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्केटबोर्ड है। तो ये क्या हो गया? ये अ स्केटबोर्ड को हम कह सकता हूं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a noun as head word। अगर मैं लिखूंगा तो इसको इस तरह लिखूंगा कि a group of words containing a noun, इस नाउन को मैं कहूंगा as a head word। हेड वर्ड, हेड वो होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि उसको हटाने से सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं रहती, बिल्कुल वो मीनिंगलेस होता है। A group of words containing a noun as a head word that functions in a sentence as subject, object, और तीसरा मैंने कहा and object of prepositional phrase। याद रखिएगा, ये अल्फाज का वो ग्रुप जिसमें नाउन होता है और नाउन उसका हेड वर्ड होगा और सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट, बतौर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज अपना फंक्शन सर अंजाम देता है, दैट इज नोन एज नाउन फ्रेज। इसको कहते हैं हम नाउन फ्रेज। किसी भी नाउन का हम ये नाउन फ्रेज बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से कहें, फॉर एग्जाम्पल, शी रैन आउटसाइड, वो बाहर दौड़ी, शी, तो है कि शी, इट इज अ प्रोनाउन। अब इसका मैं नाउन फ्रेज क्या बनाऊंगा? इफ आई आस्क यू मेक अ नाउन फ्रेज ऑफ इट, तो आप इस तरह लिखेंगे कि द लिटिल गर्ल रैन आउटसाइड। तो आपने क्या है? द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल, तो इसमें नाउन क्या हो गया? ये द लिटिल गर्ल, ये नाउन फ्रेज हो गया। इसमें ये जो है गर्ल, इसमें ये हेड वर्ड है। द लिटिल गर्ल रैन आउटसाइड, छोटी लड़की जो है वो बाहर दौड़ी। शी रैन आउटसाइड, इट इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस एंड द लिटिल गर्ल रैन आउटसाइड। सो द लिटिल गर्ल, इट इज अ नाउन फ्रेज बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a noun which is a head word, जिसका containing, जिसमें noun है और जिसका function as a head word है। So dear students, you can make a noun, you can make a noun phrase of any noun, किसी भी noun का आप noun phrase बना सकते हैं। अगर मैं कहूँगा मिसाल के तौर पर टेबल, तो टेबल का भी आप noun phrase बना सकते हैं। ये द वुडन टेबल आप कह सकते हैं, द वुडन टेबल, लकड़ी का बना हुआ टेबल, ठीक है ना। आप कह सकते हैं द रेड टेबल, समझ आया? द टेबल विच इज़ मेड ऑफ स्टील, वगैरह वगैरह। तो किसी भी नाउन का आप, या फॉर एग्जांपल गर्ल, गर्ल है लड़की, तो अ टॉल गर्ल, अ टॉल गर्ल,
इसका भी आप नाउन, ये नाउन हो गया, ये टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, इसका भी आप नाउन फ्रेज इस तरह बना सकते हैं। तो किसी भी, याद रखिएगा कि किसी भी मतलब नाउन के साथ जब आप कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड करते हैं और वो सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने फंक्शंस पर अंजाम देती है, उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट। तो फ्रेज आपने समझा बेटा कि फ्रेज अल्फाज का ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें फाइनाइट वर्ब की मिसिंग होगी। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब इज दैट विच फॉर्म टेंस, जो टेंस फॉर्म करती है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है। फिर नाउन फ्रेज के हवाले से बात किया तो नाउन फ्रेज हमने ये कहा कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing noun as a head word that functions in a sentence as a subject, object or object of prepositional phrase. So I hope that you would understand it, and if you have further any queries, any doubt, so you can WhatsApp me, inshallah, for the detail and for the examples I will give you. Thank you very much for watching.